كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، تاریخ انسانیت میں بے شمار قومیں آئی ہیں، بہت ساری بڑی بڑی عظیم سلطنتیں گزری ہیں، ان کے بڑے بڑے بادشاہ، جرنیل، سپہ سالار اور بڑے بڑے نامور لوگ اس کائنات میں آئے، لیکن جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد اس پوری کائنات میں انسانیت میں سے افضل ترین جماعت قرار دیا اور جن کو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحابیت کے لیے چنا، وہ ہے اصحاب رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ان کے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اپنے نبی کی رفاقت کے لیے ان کو منتخب کر لیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں سے سب سے جو افضل اور بہتر دل پایا ہے وہ اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात तो यकीनन अफजल और आला है, और इनके बाद अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में से जो अजीम और खूबसूरत दिल वाले लोग पाए, उनको अपने नबी का वजीर बना दिया और अपने दीन का मददगार बना दिया। तो यकीनन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जो औसाफ और उनकी जो खूबियां हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये बुलंद मुकाम अता किया है, उनमें से चंद एक का जिक्र करते हैं और उनकी कोई एक एक मिसाल भी बयान करते हैं। मकसद इसका यह है कि हमारे दिलों में सहाबा कराम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई हो, और फिर अपनी औलादों में सहाबा की मोहब्बत को मुंतकिल करें। सहाबा कराम अपनी औलादों को सहाबा की मोहब्बत के वाक़यात सुनाते और उनके दिलों में बिलखसूस सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनकी मोहब्बत कूट कूट कर भरते थे, ताकि इनसे मोहब्बत होगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साथ भी अता कर देगा। क्योंकि आपने फरमाया अलमरो मा मना हब्बा, बंदा उसके साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है, खा उसने उसको देखा हो या ना देखा हो। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत का मरकज और महवर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपके बाद आपके असहाब और अहले बैत रज़ी अल्लाहु अन्हुम हैं, ताकि अल्लाह क़यामत के दिन भी हमें उनका साथ अता कर दे। तो जो उनकी कुर्बानियां हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो इज्जत हासिल की है, जो आला मुकाम पाया है, उसके जो असबाब हैं, उनमें से एक बड़ा तो ये है कि मुश्किल हालात में वो उन हालात में ईमान लाए जब ईमान लाना कोई आसान काम नहीं था। आज कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं इस्लाम पर अमल करना, या आज के दौर में कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर ले, कोई मुश्किल नहीं उसके लिए। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इस्लाम पर अमल करना आसान है, लेकिन उस दौर में जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उस दौर में इस्लाम कबूल करना पूरी कायनात की मुखालफत और अदावत लेने के मुतरादिफ था। गोया के सारी कायनात को अपना दुश्मन बनाने के मुतरादिफ था। और जब हम देखते हैं सहाबा इकराम को, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत खब्बाब को, हजरत अम्मार को, हजरत यासर को, और हजरत यासर की बीवी हजरत सुमैया जो इस्लाम की पहली शहीदा खातून है, कि कितना जुल्म किया गया। तपती हुई रेतों पर इनको लटाया गया, कोयलों पर इनको लटाकर घसीटा गया, गले में रस्सियां डालकर किस कदर जुल्म सितम हुआ। इन हालात में जिन्होंने इस्लाम को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इस्लाम पर साबित कदमी इख्तियार की, पहाड़ की तरह साबित कदम रहे, यकीनन इनको ना सिर्फ आज के मुसलमान खराजे तहसीन पेश करते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इनको कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लाह ने इनको बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया, इनके इन आमाल की भी बदौलत, जो उनकी कुर्बानियां थी इस्लाम के लिए, और उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, इस्लाम को नहीं छोड़ा, पैगंबर इस्लाम को नहीं छोड़ा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि, मोमिनों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसकी पासदारी करके वो पूरा करके गए हैं। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो अहद किया उसको निभाया। मुश्किल हालात बड़े बड़े आए, लालच भी मिले, खौफ भी आया, लेकिन कोई चीज उनको इस्लाम के रास्ते से हटाने में
अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। और फिर उनकी ये भी खूबी थी कि वो अपनी दुनिया पर अपनी आखिरत को तरजीह देते थे। आज हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी खराबी ये है कि हम कहते हैं कि इस्लाम पर अमल करना है, लेकिन जब आखिरत के मुकाबले में, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुकाबले में कोई दुनिया का लालच और नफा नजर आता है तो फिर आंखें बंद करके इसको कबूल कर लेते हैं। कितने ही लोग हैं कि जिनको दुनियावी मफादात नजर आते हैं तो वो अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। सूद, रिश्वत, दो नंबरी, ये सारे के सारे वो काम हैं कि जो आखिरत का पता है कि इनका अंजाम बुरा होगा, लेकिन इससे पास नहीं आते, अपनी दुनिया को तरजीह देते हैं। असहाबे रसूल तो वो हैं जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके जाना चाहते हैं, घर वाले कहते हैं यहां से नहीं जा सकते, हत्ता के कंप्रोमाइज होता है इस बात पर कि सारा माल दे दो, कुछ भी साथ नहीं लेकर जाओगे। सब कुछ दे दिया और हिजरत करके मदीना पहुंच गए। अल्लाह के रसूल को पता चला, आपने फरमाया नफे वाला सौदा किया है तुमने, नुकसान वाला सौदा नहीं किया, तुमने बड़े फायदे वाला काम करके आए हो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी भी सीरत में यही है कि उन्होंने भी अपना घर बार भी कुर्बान किया, अपनी जायदाद, जमीनें, हत्ता कि अपने बीवी बच्चे, अपनी सवारी, सब कुछ कुर्बान करके खाली हाथ मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या लेकर आए हो? अल्लाह के रसूल, सब कुछ गवा कर आया हूं, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ईमान बचाया है। आपने फरमाया कुछ भी नहीं गवाया, सब कुछ ही बचा लिया है। ईमान को, अपनी आखिरत को वो लोग तरजीह देते थे और उसके लिए अपना सब कुछ, हत्ता कि अपनी औलाद, अपने बेटे, अपना घर बार, अपने मां बाप कुर्बान कर देना अपने लिए सआदत और खुशकिस्मती समझते थे। एक होता है कि मुश्किल हालात में ये चीजें कुर्बान करे बंदा, ये भी उसकी कुर्बानी है, लेकिन तंग होकर, वो तंग दिल होकर नहीं, बल्कि अपनी खुशी से अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को अपने लिए सआदत समझते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया, जबकि गज़वाए बदर में इनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो बाद में मुसलमान हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पहले मुसलमान हो चुके हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम बहुत बाद में जाकर मुसलमान हुए हैं। ये वो खुशनसीब है कि बेटा भी अभी मुसलमान नहीं हुआ, बाप भी मुसलमान नहीं हुआ और खुद सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। बल्कि अशरा मुबशरा में से ज्यादातर की तादाद वो है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल करने वाली है, इस्लाम में शामिल होने वाले हैं। तो बेटा बाद में जब मुसलमान हुआ, कहने लगा अब्बा जान, बदर में कई मर्तबा ऐसा मौका बना था, आप मेरी तलवार के सामने आए थे, मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया था, हालांकि आप मुखालिफ लश्कर में थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान और उनका जज्बा, कहते हैं ओ बेटा सुन लो, अगर तुम बदर में मेरी तलवार के सामने आते, मैंने बेटे की मोहब्बत समझकर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना था, रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर तेरी गर्दन उड़ा देनी थी। ये थे असहाबे रसूल, ये थी उनकी कुर्बानियां। आज के इस दौर में इस्लाम के लिए मामूली से मामूली चीज, दुनिया का रुपया पैसा, ये औलाद के मुकाबले में मामूली हैसियत रखता है। ये कुर्बान करना भी मुश्किल हो जाता है। ये जाए के अपनी औलाद और अपने बेटे की गर्दन पर तलवार मारना, और ये तो मौका नहीं बना था ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस बात का इजहार किया। वो भी हैं अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको आपने कहा था इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और ये उन
10 खुश नसीब सहाबा करام में हैं जिनको आपने एक ही मौके पर जन्नत की खुशखबरी दी थी, यानी अशरा मुबशरा में से हैं। बदर का मौका है, ये लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते इनका बाप इनके सामने आ जाता है। इन्होंने ये नहीं सोचा ये मेरा सगा बाप है, बल्कि रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ के और अल्लाह के नबी का मुखालिफ समझ के अपने बाप की गर्दन पर तलवार मार के उसको उड़ा दिया और इस बात को साबित कर दिया अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए बेटा क्या है, बाप क्या है, मां क्या है, हत्ता के पूरी कायनात जो कोई मलकियत है वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी जाए तो ये बहुत बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है। ये थे उनके औसाफ जिन्होंने कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए। और इसी तरह अल्लाह ने कुरान में भी कहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा उन पर हक रखते हैं कि अपनी जान को भी कुर्बान कर देना वो सआदत समझते थे। गज़वा उहद है, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन के तीर आ रहे हैं, आगे खड़े हैं, तीर आकर नेज़े आकर इनके हाथ पर लगते हैं, रसूलुल्लाह के सामने ढाल बने हुए हैं, अल्लाह के रसूल को ना लगे, अल्लाह के रसूल को टच ना करे, अपना हाथ छलनी हो जाता है। सब तरह की कुर्बानी दी, रसूलुल्लाह की हिफाजत की। ये थी इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानियां। और इसी तरह हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के सामने खड़े होकर आपका दिफा कर रहे हैं और नेज़े दुश्मनों को मार रहे हैं। आप फरमाते हैं इर्म या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साद सारी कायनात तो कहती है कि मेरे मां बाप मदीने वाले आका आपकी जात पर कुर्बान हो। मैं मदीने वाला कहता हूं इर्मे फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साद तीर अंदाजी करो, मैं मोहम्मद के मां बाप तुझ पर कुर्बान हो। ऐसे ही नहीं कहा, उनकी कुर्बानियां थी, उनके जज्बे थे और उन्होंने अपने सब कुछ दो पर लगाया था इसलिए कि इस्लाम का दिफा कर सकें, पैगंबर इस्लाम का दिफा कर सकें। और इसीलिए आपने जब तलहा रज़ी अल्लाह तआला का हाथ देखा था उहद में छलनी हो गया रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए, आपने फरमाया तलहा तूने तो अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली है, अल्लाह को तेरा ये अंदाज इतना पसंद आया है कि तूने अपने आप पर जन्नत वाजिब कर ली है। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के लिए लाया गया। सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है अबू सुफियान उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुआ था, कहने लगा अब तो सोचते होगे कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को यहां कत्ल कर दिया जाता और तुम अपने घर में बैठे होते। कहने लगे तुमने गलत सोचा है और तुमने गलत समझा है, तुम्हें समझ नहीं आई। मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि अल्लाह के रसूल को एक कांटा चुभ जाए और मैं बच जाऊं, मैं तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। ये थे उनके जज्बात, ये था उनका अंदाज, ये था उनका तरीका। और फिर उनकी रसूलुल्लाह से बेमिसाल मोहब्बत और बेमिसाल इताअत और फर्मा बरदारी। आज जरा यहां रुक कर सोचिए हम अल्लाह के रसूल की कितनी इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं। एक तरफ बीवी बच्चे आ जाएं, उनकी गलत फरमाइशें पूरी होती हैं, अल्लाह के रसूल के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक तरफ रब का हुक्म आ जाए, दूसरी तरफ वालिदैन की फरमाइश आ जाए, वालिदैन की बात को तरजीह देते हैं। हालांकि अहले ईमान का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह कहते हैं मोमिनों का अंदाज तो ये होना चाहिए कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि वो इनके दरमियान फैसला करें,
वो आगे से यही कहते हैं, समेना व अताना, हमने सुन लिया और इताअत की। अब ये नहीं अच्छा कोशिश करेंगे, अच्छा देखेंगे, कोई नेकी का हुक्म दे तो आगे से बंदा ये कह दे अच्छा बस दुआ करें आप। ये अंदाज अहले ईमान का नहीं कुरान ने जिक्र किया, बल्कि कहा कि जब उनको बुलाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, उनका फैसला आ जाए, उनका आगे से अंदाज ये होना चाहिए, समेना व अताना, हमने सुन लिया और हमने इताअत की, हमने फरमाबरदारी की, कोई दूसरी बात नहीं है। सही बुखारी में है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर कहते हैं शराब के मुश्कीदे भरे हुए, कहते हैं लोग जमा हैं और मैं उनको शराब पिला रहा था। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, अल्लाह ने शराब की हुर्मत नाज़िल की। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ यहां खड़े होकर ऐलान कर दो कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। अबू तलहा कहते हैं बाहर गली से आवाज देने वाले ने आवाज दी, ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि लोगों अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। कहते हैं यही तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तलहा मुझे कहने लगे कि जितने भी शराब के मुश्कीदे हैं इनको इसी तरह उल्टा दो, इन मटकों को बहा दो, एक कतरा भी शराब हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे ऐलान होता था मदीना की गलियों में शराब बहती हुई नजर आती थी। ये है अंदाज। ये नहीं कहा पैसा बड़ा खर्च हुआ है, ये तैयार की है, ये उस वक्त हमने तैयार की है जब अभी हराम नहीं हुई थी। इसको बेच लेते हैं, आइंदा ना बनाएंगे, इसको पी लेते हैं, आइंदा ना तैयार करेंगे, इस पर तो पैसा लगा है, वक्त लगा है, ये हमारा माल है, फरोख्त कर लेते हैं, चलो पिएंगे नहीं। ये अंदाज था कि उसके बाद फिर उन्होंने उस तरफ देखना गवारा भी नहीं किया। आज हमारे मुसलमानों की हालत क्या है? एक हिंदू असेंबली में उठ के कहता है, असेंबली में कहता है कि ये शराब तो तुम्हारे दीन में हराम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए, और आगे से मुसलमान जो हैं मेंबर वो कहते हैं नहीं नहीं इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, वो उसकी बात को रद्द कर देते हैं, इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये गुज़श्ता दिनों भी एक वाकया पेश आया, इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है। एक हिंदू जो गैर मुस्लिम है उनके यहां शराब हराम भी नहीं तो वो कहता है कि शराब पर पाबंदी लगाई जाए, और ये इस्लामी मुल्क के हुक्मरान ये कहते हैं कि नहीं बिल्कुल पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता, हम तो मर जाएंगे इसके बगैर। ये इस्लाम वाला अंदाज नहीं है। अस्हाबे रसूल को अल्लाह ने इस कदर अस्मत और अल्लाह ने उनको इस कदर आला मुकाम इसीलिए अता किया था, जब भी को अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आया उन्होंने आगे से यही कहा समेना व अताना, हमने सुन भी लिया है और नाफरमानी का तो तसव्वुर ही नहीं है, इताअत भी की है हमने, और आपकी बात को हमने मान भी लिया है। और फिर उनका बेमिसाल इखलास था कि जब अल्लाह ने कुरान करीम में भी अल्लाह ने इस बात का जिक्र किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, और उनके साथ जो ईमान लाने वाले हैं वो काफरों पर बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं, आपस में उनकी मोहब्बतें हैं, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, जो कहते हैं कि सहाबा की आपस में दुश्मनियां थी, आपस में मुखालफतें थी, किसी बात पर इख्तलाफ हो जाना वो अलग बात है, किसी सियासी मामले में इख्तलाफ हो जाना, लेकिन दीन के मामले में वो सब के सब यकजान थे, आपस में उनकी मोहब्बतें थी। कुरान कहता रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल थे, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, आप देखेंगे उनको रुकू करते हुए, आप देखेंगे उनको सजदे करते हुए। कोई एक सहाबी भी बेनमाज नहीं था। और मुसलमानों जरा देखो मेरी तरफ, इधर देखो, जो सोए हुए इनको भी उठा दो, सोए सोए रह जाते हैं।
जरा देखो कोई एक सहाबी भी बेनमाज नहीं था। ये सारे नमाजी बैठे हुए हैं जो पूरा हफ्ता नजर नहीं आते, सिर्फ हफ्तावार जुमे के दिन। क्या इस्लाम है? इस तरह समझा जैसे पूरा तुमने यहां हमेशा रहना है, मरना ही नहीं है। अल्लाह के सामने जाकर जवाब नहीं देना। कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, देखोगे उनको रुकू करते हुए और सजदे करते हुए। इनके पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का, कारोबार से मौका नहीं मिलता, दुकानदारी नहीं छूटती, मार्केट में बैठे हुए हैं, अपनी फैक्ट्री से मोहलत नहीं मिलती कि मस्जिद में आए और आकर नमाज पढ़ें। घरों में रात सारी बेदार रहकर फजर की नमाज में इस तरह होते हैं जैसे यहां कोई जिंदा ही नहीं है। ये कैफियत और असहाबे रसूल का अंदाज देखें। उनकी सीरत बयान करने का एक मकसद यह भी है कि तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह कहते हैं अगर वो इसके साथ ईमान उस तरह लाएंगे, इस कुरान के साथ इस दीन पर अमल उस तरह करेंगे जिस तरह नबी के सहाबा ने किया है, तब हिदायत पा जाएंगे। अगर उस तरह नहीं, अपनी मन मर्जी है, तो फिर अपनी मर्जी करते रहें। कोई एक सहाबी भी बेनमाज नहीं था, मेरे इल्म में कम अज कम नहीं है। आप कोई तलाश करें ज़ख़ीरा हदीस से कि कोई एक सहाबी जो बेनमाज हो। मुनाफिकीन थे बेनमाज, जो दा लगाते थे, कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी जमात के साथ पढ़ ली कभी पीछे रह गए। मुनाफिकीन का ये तर्ज अमल कुरान ने भी जिक्र किया है, हदीस में भी आया है। सहाबा बेनमाज नहीं थे। कहते हैं अगर कोई नजर ना आता मस्जिद में तो उसके बारे सोचते कि वो सफर पर गया हुआ है या फिर वो बीमार है। और फिर कहते हैं बीमार भी होता, अगर चल कर आने के काबिल होता, वो दो बंदों को कहता कि मुझे सहारा दो और मुझे जाकर बाजमात नमाज के लिए खड़ा कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। मस्जिदें करीब हैं, घरों के बनी हुई हैं, मस्जिदों में एसी लगे हुए हैं, पांचों नमाजों में मस्जिद का पुरसकून माहौल मौजूद है। इसके बावजूद मस्जिद में आने की तौफीक नहीं मिलती, तो फिर अपने ईमान पर नजरसानी करो। अगर तेरा ईमान तुझे नींद खत्म करके बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं ला सकता, तो ये तेरा ईमान क्या इस काबिल है कि तुम्हें जन्नत में ले जाए? जो मस्जिद तक नहीं ला सकता, सारी सारी रात जाग रहे हैं, दिन जाग रहे हैं, मस्जिद में आने का मौका नहीं मिलता। दुकान पे बैठे हैं, मस्जिद में आने का मौका नहीं है। कारोबार कर रहे हैं, टाइम नहीं है, नमाज पढ़ लेंगे देखी जाएगी, बस काम चल रहा है। ये जरूरी है कोई एक हदीस के फर्जी नमाज घर में पढ़ने की इजाजत कुरान से मिलती हो या हदीस से मिलती हो, बिला उज़र के अपने घर में नमाज अदा करना मर्दों के लिए इजाजत इसकी नहीं है। हमारी क्या हालत है? बस रमजान में मुसलमान होते हैं, बाकी कहां जाते हैं? हाल भरा हुआ है, ऊपर हाल भरा हुआ है। नमाज असर की होगी, वही 2-3 सफे रह जाएंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चलो आधे लोग दूर से आए होंगे, आधे लोग तो इसी गली मोहल्ले के इलाके में रहने वाले होंगे कि जो यहां रहते हैं, लेकिन कोई हफ्ते बाद नजर आता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमें रमजान में नजर आते हैं, पूरा साल ही नजर नहीं आते। जुमा भी आ जाए तो पता नहीं कहां होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ईद पे मिलते हैं, उनका तो ईद पे मिलना बनता है ना, जो कि साल के बाद वो मिलते हैं, उनको तो वाकयातन मिलना चाहिए। ये कैफियत रसूलुल्लाह के असहाब को देखो, कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम देखोगे उनको रुकू की हालत में या सजदों की हालत में, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा के मुतलाशी होते हैं। अल्लाह की रजा इखलास उनके अंदर होता है, अपने जाती मफादात के लिए नहीं, बल्कि रब की रजा के लिए उनको सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो परवाह नहीं करते। कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक नेकी के कमाल को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज खर्च ना करो। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे, कहा अल्लाह के रसूल सबसे पसंदीदा बाग तो ये मस्जिद नबी के सामने मेरा बैरुहा बाग है, मैं ये अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूं।
یہ جذبات تھے کہ اللہ کی جنت مل جائے، ان کے یہ جذبات تھے، یہ صحابہ کے اوصاف تھے۔ اور پھر صرف دین کو سنتے نہیں تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 آیات قرآن کی سیکھتے تھے، جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ معلوم کیا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ان کی کتنی محبت تھی، اور پھر قرآن پر عامل کتنے تھے کہ 10 آیات سیکھتے ان پر عمل کرتے۔ ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں اور عمل کرنے کی بات آتی ہے تو عمل میں زیرو نظر آتے ہیں اور باتوں میں ہیرو نظر آتے ہیں۔ باتیں جتنی مرضی کروا لو، دوسروں پر تنقید کروا لو، اپنے اعمال کو دیکھو تمہاری کیا صورتحال ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا انداز نہیں تھا۔ اور پھر صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس امت تک دین کو پہنچایا ہے، اور آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ جو یہاں موجود نہیں ان تک بھی دین کو پہنچا دیں۔ صحابہ کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، اصحاب رسول کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی ہے، اصحاب رسول کے ذریعے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ تمام جو اعمال ہیں اسلام کے پریکٹیکلی کر کے انہوں نے دکھائے ہیں، آج ہمیں وہ معلوم ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج دین شاید ہم تک نہ پہنچتا، اور اس خطے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں شاید سارے غیر مسلم ہی ہوتے۔ یہ تو صحابہ اکرام کی محنتیں ہیں۔ کہاں عرب سے چلے، آج کے اس دور میں جب 5 گھنٹے لگتے ہیں سعودیہ جانے میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی مشکل سمجھتے ہیں۔ وہ اس دور میں چل کر یہاں آئے، اور صرف یہاں ہی نہیں آئے، یہاں سے آگے گئے، انڈیا میں دور دراز علاقوں میں 5، 6، 7 ہزار کلومیٹر طے کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں آ کر اصحاب رسول نے ہمیں دین پہنچایا ہے۔ اگر ان کی دیانت پر شک کرو گے سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا۔ اگر ان کو امانت دار نہیں مانو گے، قرآن کو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا؟ ساری کی ساری عبادات مشکوک ہو کر رہ جائیں گی۔ یہی صحابہ اکرام تھے، اور صحابہ اکرام ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور حضرت نافع کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ انداز تھا، جہاں اللہ کے رسول نماز کھڑے ہو کر پڑھتے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ اتنی محبت تھی۔ آپ سفر کے دوران جہاں ٹھہرتے عبداللہ ابن عمر وہاں نشانی یاد رکھ لیتے، وہاں جا کر ٹھہرتے۔ حالانکہ آگے پیچھے بھی ٹھہر جائیں تو وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی کہ جیسے وہ کرتے نمونہ گویا کے سمجھتے تھے۔ اور رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے طریقے کو لازمی طور پر اختیار کرو، میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا ہے، اور اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کبھی سب صحابہ کے لیے اعلان کیا، اور کبھی حدیبیہ والوں کے لیے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان 1400 پر خوش ہو گیا ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور آپ نے بدر والوں کے بارے میں کہا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور بدر والوں اللہ نے آسمان سے نظر دوڑا کے تمہیں یہ کہہ دیا ہے آج کے بعد جو بھی عمل کرو گے اور تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔
تو असहाब रसूल से मोहब्बत का तकाजा ये है, हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करें, सबका एहतराम करें, अपनी जबान की हिफाजत करें। आपने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फअमसिकू, मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए, अगर कोई गलत जिक्र भी करता है तुम रुक जाओ, उनके बारे में कोई नजेबा बात ना करो। बदबख्त है वो जो कहता है कि फलां सहाबी तकरीम के काबिल नहीं है, नलायक है वो परले दर्जे का, जलील होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। सहाबा सब जन्नती हैं, उनसे मोहब्बत बिला तफरीक लाजमी है, अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है, सबका एहतराम लाजमी है। और उनमें जो इख्तलाफात हो गए उनमें हमारा अंदाज अहले सुन्नत का ये होना चाहिए कि उनके वहमी मामलात में खामोशी इख्तियार करें। हमें अल्लाह ने उनका फैसल और कादी और जज नहीं बनाया कि तुम उनके फैसले करो। जहां उनके कोई इख्तलाफात हो गए, इंसान थे, अल्लाह ने दरगुजर कर दिया है, तो हमें भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और उनकी सीरत का, उनके वाकयात का अपने बच्चों को पढ़ाएं। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम के वाकयात, उनकी बहादुरी, असल हमारे हीरो ये हैं कि इनके वाकयात और इनकी सीरत का मुताला किया जाए और फिर इनके औसाफ जो कुरान ने बयान किए हैं, जो हदीस में आए हैं, उन औसाफ को अपनाया जाए। जिस तरह उन्होंने दीन के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, हम भी अपने आप को उसी तरह तैयार करें, अपनी औलादों को उसी तरह तैयार करें और अपनी औलाद की तरबियत की जाए सहाबा की मोहब्बत में। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलाद जो है वो गलत लोगों के हाथों इस्तेमाल होकर सहाबा से नफरत करना शुरू कर दे और फिर सहाबा के लिए दुआएं की जाएं और जो कोई उन पर एतराजात करता है इल्मी अंदाज में उनका जवाब दिया जाए। ये है हमारी जिम्मेदारियां। इमाम तहावी राहिमहुल्लाह कहते हैं कि हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हमारा यही ईमान और अकीदा है। हम ना किसी के बारे में गुलूब का शिकार होते हैं और ना हम किसी की तनकीस करते हैं और ना हम किसी से बरात का ऐलान करते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल राहिमहुल्लाह कहते हैं, लोगों सहाबा की खूबियों का जिक्र किया करो और उनकी लग़ज़ियों से दरगुजर किया करो, उनमें खामोशी इख्तियार करो। इमाम ज़ुरा राज़ी राहिमहुल्लाह कहते हैं, इज़ा रअयत अर्रजुला यंतकिसु अहदम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, जब तुम किसी बंदे को अस्हाब रसूल में से किसी की अजमत में कमी करते हुए देखो, ये बात समझ लो वो जिंदीक है। इसलिए कि सहाबा जो हैं वो तो दीन को नकल करने वाले और हम तक दीन को पहुंचाने वाले हैं। सहाबा तो दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों में अस्हाब रसूल की मोहब्बत को भर दे, अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हमारी औलादों, हमारी नस्लों को भी ऐसा कर दे कि उनके दिलों में भी सहाबा की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो और अल्लाह हमें क़यामत के दिन और अपनी जन्नत में इनका साथ अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।